अगर ऐसा नहीं है तो तुम लोग नेता क्या बोला आपको बहुत अच्छा लग रहा दोस्त मेरा दोस्त यार प्रदीप क्या ये সবাইকে নমস্কার, বন্দে মাতরম। আমরা আমাদের আজকের দিন কর্মীদের নিয়ে আমরা আজকে সভা অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছি। এই সভার সভাপতি আসন গ্রহণ করার জন্য আমি মন্ডল প্রেসিডেন্ট প্রদীপ বর্মন মহোদয়কে অনুরোধ করছি। এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরার রাজ্য প্রভারী আমাদের শ্রদ্ধেয় সুনীল দেবজি মহোদয়। এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরার নির্বাচনী ইনচার্জ আসামের মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়। ওনাকে ওনার আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন 26 আশ্রামবাড়ির আইপিএফটি এবং বিজেপির মনোনীত জোট প্রার্থী মেবার কুমার জমতিয়া। ওনাকে ওনার আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কার্যকর্তা সবাইকে আমি অনুরোধ করছি যাদের নিজ নিজ জায়গাতে আসন গ্রহণ করার জন্য। এখন আমাদের 26 আশ্রামবাড়ির মনোনীত প্রার্থী মেবার কুমার জমতিয়া আসামের মন্ত্রী তথা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মোদীকে রিচার মাধ্যমে বরণ করানো হবে। গ্রহণ করতে আমরা অনুষ্ঠিত। এখন আমাদের মন্ডল সভাপতি প্রদীপ মহোদয় আমাদের রাজ্য প্রভারী তথা সুনীল দেবজি মহোদয়কে রিচার্জ করিয়ে
पास में मेवाड़ जी को देने दो। এখন আপনাদের কাছে আলোচনা করবেন আমাদের মনোনীত প্রার্থী শ্রদ্ধেয় মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয়। যতরণ ভাই কাহাম সবারকে নমস্কার। Today we are very much proud and privileged to have our guests, especially our Honorable Minister from Assam and also his election in charge of Tripura, Dr. Hemanta Biswa Sharma. We wholeheartedly welcome to this locality, to this Asrambari constituency. I, on behalf of our party, IPFT, and also BJP Mandal Committee of Asrambari, welcome him. And also, at the same time, our observer in charge of Tripura State, most respected our Sunil Dedorji, for his hard work and contribution in Tripura since 2 years. He's in Tripura, working very hard, working very positively for the welfare of the state and also the welfare of the people. Therefore, we on behalf of Asrambari Mandal Committee as well as IPFT Divisional Committee welcome. जों जतनो साइमानो ता राज्यनि आरो बतिनि नेदानि बहायनो बाव चेयारमैन एंड कन्वेनर जों बने बेलाय हामबाय मारगो ताम नखे बतिनि नाइबारिंग स्टेट नि बराव ब अहोमिया बतिब्रानि समयसर बर साइमानो तिब्रानि सिचुएशन ब काहामके ब सिजा बने बागै जों बने बेलाय हामबाय मारगो तैबो हामबाय मारगो चिनि सुनील देदरजी तिब्रानि इंचार्ज ऑब्जर्वर BJP ni bo belai khine samong claimani bagai mane hard work ni bagai jotoro tribal non tribal no botini tuidului hancha claibo tomani bagai sungmono belai khambai marago tini oro Asrambari Mandal Committee as well as ini IPFT ni divisional committee top theke sungmono welcome khai जों साइमानो आगामी दिन चिनि इलेक्शन चलै तंगो 18 तारिख चिनि इलेक्शन नाय ओ इलेक्शन नो जों जतनो मिलेगै আমরা সবার হাতে হাত মিলিয়ে আমরা লড়তে হবে আমাদের মধ্যে এখানে আইপিএফটি বিজেপি জুট অ্যালিয়েন্স এই অ্যালিয়েন্সকে সফল করার জন্য আমাদের আইপিএফটি কর্মী তথা তিনি বিজেপি কর্মী উনি আমার অনুরোধ আপনারা হাতে হাত মিলিয়ে আমরা কাজ করতে হবে আমরা একটাই টার্গেট ওয়ান টার্গেট দ্যাট ইজ 2018 তে আমরা সরকার পরিবর্তন করতে হবে এটা টার্গেট নিয়ে এটা মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করতে হবে আমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমরা মনোমালিন্য হতে পারে অসন্তুষ্ট হতে পারে এটাকে আমরা বলে গিয়ে আমরা কাজ করতে হবে দ্যাট ইজ মাই রিকোয়েস্ট মাই অ্যাপিল টু দ্য পিপল অফ দ্য আসামবাড়ি both tribal and non-tribal जों जत्तनो सन्तुष्ट खालामै आबो ठीक न आफानो जों एकटन लाहरमों एकटन दिन टार्गेट जे खालामफ्लानो बाय एनी मीन्स हुक एंड क्रुक जों 2018 गो जों सरकार बामफ्राम सरकारनो जों मासलायनाय अबर जोंनि उद्देश्य बोरैबाय आं जत्तनो कय बिसि ककबं साया जों जरा कम जों आरो किसा चालिमु दं जोंनि जों नेतार किसा चारनाय আপনি বাগै आं हायनो हाय আমার অশেষ ধন্যবাদ আমাদের বায়ু বোনেরাকে আসামবাড়ি এলাকার লোককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম
ধন্যবাদ আমাদের প্রার্থী ওনার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। এখন আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখবেন আমাদের 26 আশ্রামবাড়ির মন্ডল সভাপতি প্রদীপ দেববর্মা মহোদয়। সবাইকে নমস্কার। আমি ভারতীয় জনতা পার্টি আশ্রামবাড়ি মণ্ডলের পক্ষ থেকে সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। आंकुलानो जतनो नानी खाकचां ताई खाकुपुर हामबायाफोरै बक्थाचाथिनि सारानायो जों दिनरो भारतीय जनता पार्टी एवं आईपीएफटी যৌথ যে সংগ্রাম চালকলাই দংমানি ও যৌথ সংগ্রাম চালকলাইমান্ন 2018 সালে যে চংমাদিন বিপুল খাই তিসারানি এবং তিনি যে মানগোনাं চিনরনি आईपीएफटी मनोनीत प्रार्थी मेबार कुमार जमातियानो चुंगर गोबां माबुटो जितिरिवै बनचुं कायसा जोंनि स्टेटनि आंचंगो एवं अरनि जे आश्रामबाड़ी मंडलनि जे आईपीएफटी एवं जे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तार गर्व चंगो बनकायसा एडुकेशन मिनिस्टार पदग्रहण खायनायनि बागै जोंहाबो जे साखायफानो जों जे जान तंसाक थुइया साक जरा जों बनो चेष्टा खाय माति सानाय ओ खाओ এই মনোমালিন্যটুকু আমরা সবাই রেখে এবং আপনাদেরকে আমাদের 47 বুথ কেন্দ্র অর্থাৎ 26-এর 47টা বুথ কেন্দ্রের যাতে সব বুথ কেন্দ্রেই যাতে বিপুল ভোটে দাও চিহ্নে বুথ দিয়ে জয়যুক্ত করবেন এই আশা বিশ্বাস রেখেই আমরা হাইনো যতন থানে হাইনো হাই খাকুপুর খাকচাং কয়মুংয়া পরে আনি কক সামান্য অরণ পাইকা भारत माता की जय वंदे मातरम। এখন আপনাদের কাছে আলোচনা করবেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রভারী সদ্য সুনীল দেববর্মা। सबके आदरणीय डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, मेरे बहुत पुराने मित्र जो आपके यहाँ के कैंडिडेट है मेवार जमातिया जी, हमारे यहाँ के आईपीएफटी के नेता और बाकी सभी मेरे भाई और बहनों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत जगह पर इसी प्रकार की मीटिंग्स को एड्रेस करते करते हमको 5 बजे तक अगरतला पहुँचना है। मेरे मन में 2 ही बातें आई हैं। इस राज्य में जो वर्तमान में जो सरकार थी, अभी तो सरकार है नहीं, अभी तो चुनाव हो रहे, 25 साल से जिस वामफ्रंट सरकार ने यहाँ पर राज किया, उनको पक्का मालूम था कि अगर आईपीएफटी और बीजेपी दोनों का गठबंधन हो जाता है तो त्रिपुरा में उनको सीटें गिनने के लिए दूसरे हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक हाथ पर ही निपट जाएंगे। बुझছেন আপনি? एक हाथेर मध्य गोतो उंगली 5 से ज्यादा सीट उनको नहीं मिलेगी। मतलब 55 सीटों पर जो है बीजेपी आईपीएफटी पक्का जीतेगी और 5 सीटों पर टफ फाइट होगी, पता नहीं उसमें भी सीपीएम हार जाए। इसलिए बहुत कोशिश कर रहे थे कि आईपीएफटी को बदनाम करो, आईपीएफटी को आतंकवादी बताओ, ये आतंकवादी है, आतंकवादी है, कपड़े खोलकर बैठ जाते हैं, न जाने क्या क्या। हा? इन लोगों ने इस राज्य में हजारों महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया। ये लोग बलात्कारी आतंकवादी नहीं है? सीपीएम वालों ने यहाँ पर इतने गरीब जनजातियों को छोड़ दिया, उनको इतना थर्ड क्लास सिटीजन बना के रख दिया कि पहनने के लिए कपड़ा उनके पास नहीं है। ये करने वाले सीपीएम वाले आतंकवादी नहीं है, चोर डाकू लुटेरे डकैत नहीं है।
उन्होंने सब प्रयास करके देखे आईपीएफटी को बदनाम करने के कि बीजेपी डरेगी, उनके पास नहीं जाएगी। लेकिन हम लोग ये उनके ट्रैप में फंसने वाले नहीं थे, छलावे में आने वाले नहीं थे, हम कोई भी धोखा खाने वाले नहीं थे। हमने इन सब नेताओं के साथ, अनंत जी के साथ हम लोगों ने लंबी बातचीत करके, एनसी देव वर्मा जी के साथ घंटों बैठकर रात रात भर चर्चा करके हम लोगों ने अलायंस फाइनल किया, अलायंस की सीटें फाइनल की। और जैसे ही ये अलायंस डिक्लेयर हो गया, सीपीएम वाले जितने मंत्री बैठे हुए थे सबके कुर्सियों के पैर टूट गए और नीचे गिर गए। सबको पता चला अब ये कुर्सियां उनके पास वापस आने वाली नहीं है, उनके हाथ में जेल की चक्कियां आने वाली है पीसने के। जितना पैसा जनजाति का लूटा है, जितना अपमान उन्होंने जनजाति का किया है, एक एक का चुन चुन के बदला आईपीएफटी और बीजेपी की गवर्नमेंट लेने वाली है। मैं आपसे वादा करता हूं, हम एक भी सीपीएम वाले को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा मत समझिए सत्ता में आने के बाद ये सब लोग भूल जाएंगे। हिसाब लेंगे, आपके हर आंसू का हिसाब लेंगे, आपके गिराए हुए हर खून के एक एक बूंद का हिसाब लेंगे। और त्रिपुरा में ऐसा हम एक राज्य सरकार देंगे कि कोई जनजाति 200 रुपए में अपने बच्चे को बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा। हम ऐसा एक त्रिपुरा को गठबंधन की सरकार देंगे कि गंडाछारा में मलेरिया का मच्छर काटने से 100 बच्चे मर जाते हैं, ऐसी घटना कभी नहीं घटेगी। अच्छे अस्पताल देंगे, मेडिकल कॉलेजेस देंगे। 1.25 लाख जनजाति है जिनको अपना खुद का घर नहीं है, लैंडलेस बना दिया है, होमलेस बना दिया है। आईपीएफटी बीजेपी गठबंधन की सरकार आएगी, ये सब 1.25 लाख लोगों को डिमार्केशन के साथ उनका पक्का घर देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं 2022 तक। कल का आपका बजट देखिए, कल का बजट, उसमें उन्होंने कहा है कि हर गरीब को उसका पक्का मकान 2022 तक। हम 18 में सत्ता में आएंगे तो 2022 5 साल में आ जाता है, तो हम 2022 से पहले सारे ऐसे काम करेंगे जो आज तक कभी नहीं हुए। मेरे भाइयों और बहनों, 2 चीजें मैं आपसे मांगकर नीचे बैठ जाता हूं। एक तो एक दिल से काम कीजिए। अभी हम 2 अलग अलग नहीं है, अब अलगपन की भावना निकाल डालिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता है, मैं सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बताता हूँ, अब इस गठबंधन को दिल से स्वीकार कर लीजिए। देखिए कितने भले हमारे प्रदीप देव वर्मा जी हैं, सीपीएम छोड़कर आए। ये पूरे आसाराम बाड़ी में एक बूथ नहीं था हमारा, एक बूथ नहीं था। मैं बार बार पूछता था, अरे आसाराम बाड़ी में कोई प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा? तो पहला एक प्रोग्राम हुआ था, मुझे याद है, हिमंत दा, सारा मैदान खाली था, सामने 20-25 लोग आकर बैठे थे जब इन्होंने ज्वाइनिंग किया, और बहुत सारे लोग दूर दूर दुकान पर ऐसे डर डर कर देख रहे थे बीजेपी की मीटिंग को। ये 2 साल पहले का दिन था जब ज्वाइनिंग प्रदीप दा ने किया। उसके बाद में उन्होंने मंडल खड़ा किया, बूथ खड़ा किया, पन्ना प्रमुख बनाए, सारा मेहनत, सारा परिश्रम टीम को लेकर प्रदीप दा ने किया। आज अगर अलायंस नहीं होता तो हमारे कैंडिडेट प्रदीप देव वर्मा जी थे, ये बताने में मुझे कोई हर्जा नहीं। लेकिन देखिए किस तरह से प्रदीप दा, जैसे पता चला अलायंस में सीट गई और मेवार जी कैंडिडेट है, प्रदीप दा दिल से लग गए। अभी मुझे 2 लोग बता रहे थे, सबसे ज्यादा हमें नवारुण मेधी जी आसाम से आए, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मेहनत प्रदीप जी कर रहे हैं। ये बीजेपी का चरित्र है। हम लोग ईमानदार नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है। ये गठबंधन ईमानदार होना चाहिए। इस गठबंधन ने गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। जहां आईपीएफटी का कैंडिडेट है, पूरी ताकत लगाकर बीजेपी आईपीएफटी के कैंडिडेट को जिता कर लाएगी। आज जब मैं देख रहा था, मेवार जी जब साफा पहना रहे थे हिमंत दा को, तब किसी ने कहा मिनिस्टर को मेवार जी जब साफा पहना रहे, मेरे मन में विचार आया कि एक फ्यूचर मिनिस्टर एक प्रेजेंट मिनिस्टर को साफा पहना रहा है। ये चीज अगर सत्य होनी है तो मेरे सारे बीजेपी के भाइयों बहनों को मैं बताता हूं कि आपको मेवार जी कभी भी निराश नहीं करेंगे। आपको उतना ही सम्मान देंगे जितना आईपीएफटी के कार्यकर्ताओं को देते हैं। घुल मिलकर जाइए। आईपीएफटी वालों को भी मैं बताता हूं, देखिए सीपीएम संतराश वाली पार्टी है।
ये केवल मारपीट गुंडागर्दी करके ही ये पार्टी को बढ़ाए हैं। इनके खिलाफ जो है ना, मैं सच बताता हूँ, पद्म फूल से लड़ नहीं सकते हैं, दाव से ही लड़ सकते हैं इनके साथ। और इसलिए इनका जो संतराश है ना, इसको बीजेपी वालों का क्या होता है, बीजेपी वालों के बूथ तोड़ते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, बीजेपी वाले गुस्सा होते हैं, पुलिस स्टेशन को घेराव करते हैं, कानून के रास्ते से जाते हैं और हमारे पास आकर बताते हैं ऐसा हुआ, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। आईपीएफटी के साथ ऐसा कुछ करेंगे तो आईपीएफटी वाले उधर के उधर सीपीएम का हिसाब किताब पूरा कर देते हैं। इसलिए थोड़ा बीजेपी वालों ने भी थोड़ा आईपीएफटी वालों से ये गुण लेना चाहिए। आत्मरक्षा में आप किसी के भी ऊपर हाथ उठाते हैं और आत्मरक्षा में आप हाथ उठाते हैं और आपका हाथ उठाने पर सामने वाला उठ भी जाता है तो कानून की दृष्टि से वो गुनाह नहीं है। आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में। और इसलिए जब गुंडों के साथ लड़ना है तब हम लोगों को उनकी भाषा समझ में आनी चाहिए, बोलने भी आनी चाहिए। और इसलिए संघर्ष कीजिए। सीपीएम ऐसे सत्ता देगा नहीं, वो बहुत और हिंसा करेगा। आसाराम बाड़ी ख्वाह ये सब इनके बहुत बड़े गढ़ है। यहाँ पर कितने साल से वो बुजुर्ग मिनिस्टर है, कितने साल से? 25 साल से एक ही है ना। और ये कैसा आपका यहाँ का अघुरुदेव वर्मा ना, कैसा मिनिस्टर है ये। जब इसको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के 7th पे कमीशन देना चाहिए तो उसका स्टेटमेंट पता है क्या है? अरे नहीं नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन मत बढ़ाना, वो दारू पीकर पड़े रहेंगे। इतना अपमान। अरे राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाते हैं तो वो अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराएंगे, जो इलाज बादल चौधरी ने कभी स्टेट में नहीं होने दिया। वो या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर भेजेंगे कि जो माणिक दे ने इस राज्य में कभी नहीं दिया। ये सारा जो है इतना अपमान किए हैं जनता का। आज हमारे पास मौका आया है, एक दिल से आप जीतिए, जिताइए। मेवाड़ जी जीतेंगे मतलब बीजेपी जीतेगा, मेवाड़ जी जीतेंगे मतलब आईपीएफटी जीतेगा। और बीजेपी वालों को मैं बताता हूँ, गले में साफा विफा पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा से ज्यादा झंडे आसाराम बाड़ी में ये 15 दिन जो है ये आईपीएफटी के दिखने चाहिए। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जनता को सीपीएम ने बहुत जो है गंवार रखा है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, एक्सपोजर नहीं दिया है, तो बहुत अनपढ़ लोग हैं। उनको अगर पद्म फूल का झंडा भी दिखाई देगा ना तो उनको ये समझ में नहीं आएगा गठबंधन है वगैरह। पद्म फूल को जो चाहते हैं, मोदी जी को जो चाहते हैं, वोटिंग के लिए जाएंगे, देखेंगे पद्म फूल नहीं है तो दूसरे किसी के भी ऊपर जो है बटन दबाकर वापस आ जाएंगे, तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए जहां आईपीएफटी लड़ रही है वहां बीजेपी वालों ने बहुत ज्यादा कमल के झंडे नहीं दिखाने। एक दो जगह पर रहना ठीक है, जहां ज्वाइंट मीटिंग है वहां पर वगैरह, लेकिन जनरल आईपीएफटी के झंडे लेकर ही सभी आप लोग घूमना शुरू करेंगे। मतलब अपने आप हमारे वोटर्स को पता चलेगा कि आईपीएफटी हमारा कैंडिडेट। ये पहली बात। और दूसरी बात, डिमांड सबकी अलग अलग है। देखिए, सबकी डिमांड एक ही होती तो दो पार्टियां ही नहीं बनती। पार्टियां इसलिए अलग अलग बनती है कि सबकी मांगे, सबका एजेंडा अलग अलग होता है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश पर राज कर रही है। 19 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जिस पार्टी के हैं, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जिसको दुनिया मानती है, दुनिया विश्व नेता मानती है, और भारत की हर माँ मानती है कि मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर है। भारत की हर बहना मानती है मेरा भाई प्राइम मिनिस्टर है। भारत का हर गरीब मानता है मेरा मसीहा प्राइम मिनिस्टर है। भारत का हर युवा मानता है कि मेरा आइकॉन प्राइम मिनिस्टर है, मेरा आदर्श प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री जिस पार्टी का है, ऐसी पार्टी है, इस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है। हम लोग भी दुनिया का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, कल का बजट 5 लाख रुपया यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ सब गरीब लोग हैं, 5 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस 50 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने दिया कल के बजट में। कितनी बड़ी क्रांति है। आपका कोई भी ऑपरेशन होता है जिसका 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा है, आप गरीब है, तो ये पैसा सरकार देगी। इसका मतलब है इंश्योरेंस करेंगे, सरकार देगी। इतनी बड़ी योजना आज तक किसी ने नहीं की थी। तो हम लोग विकास के लिए आए। आपकी भी मांगे हैं, आपकी मांगे हैं, आईपीएफटी की मांगे हैं, लेकिन मेवाड़ जी इस चुनाव प्रचार में 15 दिन
हम सबके मुख पर एक ही बात होनी चाहिए, सब कैंडिडेट सब कार्यकर्ताओं के मुख में, और वो बात चलो पाल्टाए सीपीएम भगाए, बस। और इसके अलावा हमने कुछ नहीं बोलना। ये बस यही बोलते रहना, चलो पाल्टाए सीपीएम हटाओ, चलो पाल्टाए सीपीएम हटाओ। सीपीएम हट जाएगी, उसके बाद में आपकी क्या डिमांड है लोग पूछेंगे। सीपीएम ही नहीं हटेगा तो वापस आपको जाकर रास्ता बंद करने के लिए बैठा रहेगा। और इस बार 5 साल उनको मिलेंगे तो 5 दिन क्या 5 घंटे भी बैठने नहीं देंगे, गोलियां चलाएंगे। इतने हरामी लोग हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखिए इस बात को। आप लोगों ने कभी भी चलो पाल्टाए और सीपीएम भगाओ, ये 2 ही बातें आप लोगों ने करते रहने चाहिए। एक दिल से मिलकर लोगों ने काम करना चाहिए और इन देशद्रोहियों को इस राज्य से उखाड़ कर फेंकने का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम आप सब लोग करेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। और 5 साल एक अच्छी सरकार गठबंधन की देने का वादा है। भारत माता की जय। जतनु खुलुम खान, जतनु हम्बाय। ধন্যবাদ আমাদের সকল রাজ্য প্রভারী সুনীল দেবদিনার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। এখন আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখবেন আসামের মন্ত্রী তথা ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচনী ইনচার্জ ডক্টর হেমন্ত শর্মা মহোদয়। मंच में विराजमान त्रिपुरा राज्य का प्रभारी बीजेपी का लोकप्रिय नेता सुनील देवधर जी, असरामबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आईपीएफटी और बीजेपी का उम्मीदवार मेवाड़ जमातिया जी, अनंत देव वर्मा जी, हमारा मंडल अध्यक्ष जी, बाकी दोनों पार्टी का नेतागण और आज सभा में उपस्थित भाई और बहनों, हमारा कार्यकर्तागण। तो आज का जो सभा है, ये सभा कोई पब्लिक सभा नहीं है। एक हम लोग का बीच में एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए या एक दूसरा का क्या इलेक्शन में स्थिति होगा वो बताने के लिए ही आज सभा है। सुबह से हम लोग निकाला था, पहला सभा सिमना में किया, इसका बाद हमने आरसी घाट में किया, अभी असरामबाड़ी में आप लोग का साथ मुलाकात हुआ। आगे जाते जाते हम कल्याणपुर तेलियामुड़ा में भी हम लोगों को मुलाकात करेगा। इस मुलाकात का लक्ष्य क्या है, इसलिए आप लोग सब लोग को मालूम है कि ये इलेक्शन पहले आईपीएफटी बोला था कि हम अकेला लड़ूंगा, फिर बीजेपी में भी पूरा तैयारी था कि हम 7 सीट में लड़ेगा। और इसी हिसाब से सुनील जी ने बताया कैसे हमारा मंडल अध्यक्ष जी ने बूथ कमेटी बनाया, सब हुआ। ऐसे आईपीएफटी का फिर यहाँ में काफी संगठन बना। फिर जब हमारा गुवाहाटी और अगरतला में मीटिंग हुआ, मीटिंग का बाद यह निर्णय हुआ कि 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारा रिजर्व है, जनजाति के लिए है, उपजाति के लिए है, उसमें 11 बीजेपी लड़ेगा, 9 आईपीएफटी लड़ेगा। मतलब क्या है, जो आरसी घाट, सिमना, तकरजला, असरामबाड़ी, ये जगह में जो बीजेपी का उम्मीदवार जो तैयार था या बीजेपी का जब बूथ कमेटी बना था, मंडल कमेटी बना था, हजारों कार्यकर्ता हुआ था, वो लोग का पास अभी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। तो मन में थोड़ा लगा, भाई हम इतना कष्ट किया, हमारा क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये जो बात है, ये जैसे बीजेपी के लिए है वो आईपीएफटी के लिए सही है। जैसे हमारा करमसेरा हो गया, अम्बासा हो गया, कृष्णनगर हो गया, ये सब जगह में भी आईपीएफटी का तैयारी था। लेकिन इन वक्त में जब अलायंस हुआ तो आईपीएफटी का लोग ने वो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दिया और बीजेपी को दे दिया। मतलब दोनों जगह में हमने, कोई जगह में बीजेपी पीछे हटा, कोई जगह में आईपीएफटी पीछे हटा, लेकिन बात जो हुआ बराबर का बात हुआ। अभी हम कैसे जीतेगा, जहां में आईपीएफटी का कैंडिडेट है वो जगह में बीजेपी का लोग पूरा आईपीएफटी बन के ये 18 तारीख तक अपने आप को आईपीएफटी का सिंबल में लोगों को बीच में जाके वोट दो, अपील करना, रिक्वेस्ट करना, ये काम हमारा बीजेपी का लोग करना पड़ेगा।
ठीक इसी तरह जहां में बीजेपी का कैंडिडेट है वहां में आईपीएफटी का लोग यही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम सुबह से बीजेपी और आईपीएफटी दोनों दल का हम लोग आज पूरा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी घूमने के लिए निकाल आया, कैसे हमारा बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े। अभी जब हम लोग दोनों पार्टी एक हुआ तो सीपीएम का ये हमेशा मकसद रहेगा कि भाई दोनों पार्टी का बीच में कोई ना कोई झगड़ा लगाओ। कोई इशू बोलेगा इसमें आईपीएफटी का व्यू क्या है, इसमें बीजेपी का व्यू क्या है। हमारा व्यू जो है बहुत स्पष्टता है। हम ये देखा हो कि लोग पॉलिटिकल डिमांड कब करता है, जब सामाजिक न्याय नहीं मिलता है, अर्थनैतिक सुविधा नहीं मिलता है, अपना भाषा और संस्कृति का रक्षणाबेक्षण नहीं होता है, तब लोग पॉलिटिकल डिमांड बोलता है। आज आप आसारामबाड़ी में भी देखिए, बेकार का हाथ में नौकरी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, अच्छा रास्ता नहीं है, तो लोगों का मन में होता है कि भाई हम अगरतला से न्याय नहीं मिल रहा हूँ तो हमको कुछ और कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब न्याय मिलता है तब लोग नाराज नहीं होता है। लोग कब नाराज होता है? When people see injustice। जब पीपुल को अन्याय देखता है तो पीपुल नाराज होता है। तो आज त्रिपुरा में सब लोग नाराज है। जैसे जनजातीय लोग नाराज है, ऐसे बंगाली लोग भी नाराज है, ऐसे हिंदी भाषी लोग भी नाराज है, सकमा भी नाराज है, मॉग भी नाराज है। इसलिए किसी का हाथ में सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई गांव का बंगाली लोग एकदम पीने का पानी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कोई लोगों को नौकरी मिल रहा है। खाली सीपीएम का राज में एक ही लोग खुश है कि सीपीएम से अगर आसारामबाड़ी तक एक रोटी आते हैं, वो रोटी खाने का किसी को इजाजत नहीं है, खाली सीपीएम का कैडर लोग ये खा जाते हैं, बाकी लोग खाने नहीं मिलता है। तो इसलिए सब लोग नाराज है। तो ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हम इसलिए परिवर्तन का बात बोलता हूँ कि मानिक सरकार परिवर्तन हो, ये बहुत बात नहीं है। मानिक सरकार परिवर्तन होगा, फिर बाद में बादल चौधरी वहां में बैठ जाए, बात तो एक ही रह गया। तो हमको व्यवस्था की परिवर्तन चाहिए। ऐसा एक व्यवस्था चाहिए जहां में लोग कैडर ना बने भी लोग नौकरी मिल सकता है, बेकार लोग मेरिट का ऊपर नौकरी मिल सकता है, सुविधा हो सकता है, लोगों का घर में पानी हो सकता है, सरकारी सुविधा समान ढंग से सबका हाथ में आए। ये हमारा परिवर्तन का यही नारा है। हमारा 16 पलटाव मतलब 16 मानिक सरकार पलटाव नहीं है, 16 पलटाव मतलब व्यवस्था का परिवर्तन है। और ये व्यवस्था का परिवर्तन के लिए आज बीजेपी और आईपीएफटी हम लोग मिल के ये 25 साल का जो अराजकता है, जो एनआरकी है, इसका खिलाफ हम लोग एक सिस्टम बनाने के लिए इलेक्शन लड़ने का कोशिश किया हूँ। अभी हमारा ये विनती है, जैसे जब हम न्याय का बात बोलता हूँ, ये स्थित आश्रमबाड़ी मेवाड़ जी उठ रहा है, मेवाड़ जी खड़ा है, आईपीएफटी का ये सीट गया है। लेकिन न्याय का मतलब क्या है? इस इलेक्शन का बाद अगर मेवाड़ जी एमएलए बना, भगवान करे तो मंत्री भी बने, लेकिन हमारा बीजेपी का लोगों को अगर न्याय नहीं मिलेगा, फिर अन्याय का व्यवस्था हो गया। तो इसलिए हमने ये बोला हूँ, सब जगह में बीजेपी का कैंडिडेट को बोला हूँ, आईपीएफटी का कैंडिडेट बोला हूँ, देखो ऐसा बिहेव करना जैसे माँ जब खाना पकाता है, माँ दोनों भाई को समान देता है खाना, उसमें माँ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। सो ये इलेक्शन का बाद भी मेवाड़ जी का जिम्मेदारी होगा, जब अगरतला में एक रोटी अगरतला से ये आएगा, आधा बीजेपी को दे दो, आधा आईपीएफटी को दे दो, मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट को चलाओ। ये व्यवस्था हमको करना है। तो इसलिए हम आज मंडल सभापति है, मंडल अध्यक्ष जी है, मेवाड़ जी है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, एक दिन के लिए नहीं, पूरा 5 साल के लिए एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। आज यहाँ में एक रास्ता आ रहा है, दोनों पार्टी बैठ के डिसाइड करे रास्ता कहाँ बनेगा। यहाँ में कुछ सुविधा आ रहा है, दोनों पार्टी बैठ के डिसाइड करे ये सुविधा किसको मिलेगा। एक जैसे एक माँ का 2 बेटा होता है, घर में बैठ के सब बात डिसीजन होता है, ऐसा हमारा परिवार का बीच दोनों पार्टी एक साथ मिलके इसको आगे बढ़ाना है। पॉलिटिकल डिमांड हमारा अपना जगह में रहेगा, वो अगरतला में होगा, दिल्ली में होगा, वो होगा, लेकिन पॉलिटिकल डिमांड एक जगह में है। पॉलिटिकल डिमांड छोड़ के भी हमारा बहुत बड़ा इश्यूज है
रास्ता कहाँ बनेगा, पीने का पानी कहाँ जाएगा, शिक्षक कहाँ होगा, मेडिकल कहाँ होगा। आज अभी मैं बात बोल रहा था, जैसे आसाम में आप 108 को डायल कीजिए, एम्बुलेंस 15 मिनट से आधा घंटा में घर में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली असम में होता है, मेघालय में कांग्रेस है, लेकिन मेघालय में भी वो व्यवस्था है, लेकिन त्रिपुरा में वो व्यवस्था नहीं है। आज सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। आज मेघालय बोलिए, आज कोई असम बोलिए, अरुणाचल बोलिए, नागालैंड बोलिए, कम से कम एक केंद्र में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कॉलेज होता है, लेकिन आज यहाँ में कहाँ है? शिमला में कॉलेज होना चाहिए था, आश्रमबाड़ी में कॉलेज होना चाहिए था, खुवाई में कॉलेज होना चाहिए था, हमारा आरसी घाट में कॉलेज होना चाहिए था। आज तो नहीं है, आज खाली 18-19 ही कॉलेज है त्रिपुरा में। आज आसाम जगह जगह में 27 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, त्रिपुरा में 3 भी नहीं है। आज आसाम जैसा जगह में 12 मेडिकल कॉलेज बन गया, यहाँ में खाली अगरतला में है, धर्मनगर में कुछ नहीं है, उदयपुर में कुछ नहीं है, खुवाई में कुछ नहीं है। तो ये जो व्यवस्था का परिवर्तन है, पॉलिटिकल डिमांड का आगे भी हम लोग को करने वाला बहुत कुछ काम है। जब लोगों का इकोनॉमिक डिमांड सॉल्व हो जाता है, न्याय मिलता है, सामाजिक न्याय मिलता है, सांस्कृतिक न्याय मिलता है, तो लोग आगे झगड़ा नहीं करता है। आज जो सीपीएम शांति का बात बोलता है, ये शांति किसका ऊपर है? वो लोग सोचता है शांति है। शांति किसका ऊपर है? दमन का ऊपर शांति है। कोई अगर आंदोलन करता है पुलिस लगाता है, कोई आंदोलन करता है तो हत्या करवाता है, कोई आंदोलन करवाता है रेप करवाता है, और ऐसे शांति किया है। लेकिन बीजेपी ऐसा शांति साथ है, भाई सबको न्याय मिले तो सबको डेवलप मिले तो देश का अपने आप शांति हो जाए। तो वो जो दमन का आधार में जो शांति है, हत्या और बलात्कार का भित्ति में जो शांति है, ये शांति हमको नहीं चाहिए। हमको शांति चाहिए ऑन इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, कल्चरल जस्टिस, लिंग्विस्टिक इक्वालिटी। तो न्याय का व्यवस्था का आधार हमको शांति चाहिए, और ये न्याय का व्यवस्था का आधार त्रिपुरा में शांति लाने के लिए आईपीएफटी और बीजेपी हम लोग एक साथ हुए। अभी कभी सीपीएम बोलता है आईपीएफटी बीजेपी आएगा तो शांति खत्म हो जाएगा देश में। अरे बाबा, तुम कौन सा देश में शांति किया है? सब तो भय है, सबका मन में तो त्रास है, सबका मन में तो भय है। आज कोई इलेक्शन कैंपेन करता है, आज उनका कार्यालय जल जाता है, काल वो होता है। आज जैसे आज आप खुवाई से, मैंने अभी पूरा शिमला से लेकर यहाँ में आया, हर जगह में एक एक लाल झंडा खड़ा करके रखा है। क्यों? डरवाने के लिए, नहीं तो क्यों इतना लाल झंडा जरूरत है? 25 साल हो गया तुम्हारा, लोगों को तो मालूम ही है अभी लाल झंडा तुम्हारा झंडा है, फिर लगाने का क्या जरूरत है? मतलब इससे ये लोग मैसेज देना चाहता है, देखो हम लोग सीपीएम हर जगह में है, हमको वोट नहीं देगा तो तुमको भी लाल कर दूंगा। लाल का मतलब क्या है? ब्लड है। मतलब सीपीएम को वोट नहीं देगा, तुम्हारा जिंदगी भी हम लाल कर देगा, ब्लड सेट करवा देगा, यही है मतलब। तो ऐसा भय का आधारित शांति हमको नहीं चाहिए। हमको न्याय का ऊपर जो प्रतिष्ठित शांति है, जो शांति में हमारा माँ रात 2 बजे तक रात निकाल सकता है, जो शांति का आधार में बेकार लोग को नौकरी मिलता है, जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं करने से भी नौकरी मिलता है, जो शांति में बंगाली है, कॉकबरोग हो, सब लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, ऐसा शांति हमको चाहिए। इसलिए आईपीएफटी और बीजेपी इकट्ठा हुआ है। इसलिए आज हमने आप लोग का बीच में आया हूँ। मेरा बीजेपी का जो कार्यकर्ता गण है, उनको मैं बताने आया हूँ, देखो ये मोदी जी का सपना है कि न्याय का ऊपर त्रिपुरा का विकास हो, शांति का ऊपर त्रिपुरा का विकास हो, भय का ऊपर विकास नहीं होना चाहिए। और ये न्याय का ऊपर शांति कायम करने के लिए बीजेपी का लोग सब कुछ भूल के मेवाड़ जमातिया को जिताने के लिए 100% कोशिश करना, और ये काम बीजेपी का कार्यकर्ता करे, इसके लिए हम यहाँ आया हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा देव वर्मा जी ने, प्रदीप देव वर्मा जी ने, जो पहले कहीं लेफ्ट फ्रंट में रहा, फिर हमारा पार्टी में आया, और आज उनमें पूरा एकदम 100% मेवाड़ जी को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ में कितना पोलिंग बूथ है? तो मेरा ये विनती होगा कि 47 पोलिंग बूथ में मेवाड़ जी और प्रदीप जी दोनों एक साथ जाइए। बीजेपी का लोगों, जैसे आज हम लोग मीटिंग किया, यहाँ में आधा बीजेपी है, आधा आईपीएफटी है, ऐसा अभी आप लोग दोनों अगले 3 दिन हर पोलिंग बूथ में जाइए। एक घर में बीजेपी का भी पोलिंग कमेटी को बुला लीजिए,
आईपीएफटी का भी पुलिंग कमेटी को बना लीजिए और दोनों मिल के बोलिए देखिए हम न्याय का ऊपर शांति करेगा, सबको मिलेगा। एक रुपया आएगा तो आधा बीजेपी ले जाएगा, आधा आईपीएफटी ले जाएगा, किसी का बीच में झगड़ा नहीं होगा। ऐसा मैसेज आप 40 बूथ में जाके दीजिए। 2-3 दिन में आप लोग पूरा बूथ में घूरिए, देखिए आसाराम बाड़ी 100% जीत जाएगा। आप लोग को सबसे पुनर्बार निवेदन है, इसमें आईपीएफटी और बीजेपी का बात तो बोल रहा हूँ, साथ में और एक बात है, इसमें हमारा बीजेपी का जैसे प्रदीप जी ने सेक्रीफाइस किया है, हमारा सपना डी ने भी सेक्रीफाइस किया है। वो भी कैंडिडेट होता था लेकिन वो अपना सेक्रीफाइस करके मेवाड़ जी को छोड़ दिया। इसलिए आज त्रिपुरा में अपना को एमएलए बनाना बड़ा बात नहीं है, व्यवस्था को परिवर्तन करना सबसे बड़ा बात है। सो सबने कुछ ना कुछ त्याग किया है और ये त्याग का हम लोग स्वीकृति देता हूँ, हम रिकॉग्नाइज करता हूँ। और ये त्याग को हम कैसे रिटर्न करेगा, त्रिपुरा का डेवलपमेंट से त्रिपुरा का हर लोग का मन में न्याय और शांति कायम करते हुए हम त्रिपुरा को आगे ले जाएगा, यही हमारा विचार है, यही हमारा वाणी है। तो आप लोगों को मैं पुनर्बार नमस्कार करता हूं और मेरा मुझको ये मैसेज मिलना चाहिए, भाई देखो बीजेपी और आईपीएफटी दोनों एक साथ 40 वोट में दिया है, एक साथ काम किया है और हर मीटिंग के बीजेपी का लोग बोलिए देखिए हमको तो आप देखा है पद्म फूल हम लोग पहन रहा है, लेकिन पद्म फूल में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं देना, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आईपीएफटी का दाव का सिंबल है ना, दाव में दीजिए। आप लोग खुद बोलिए देखिए हम तो पद्म फूल पहन के आया हूँ लेकिन हम बीजेपी है, लेकिन आश्रम बाड़ी में दाव में वोट दीजिए। तो ऐसा बानी हमको देना है और सब लोग पूरा दिल से जैसा मेवाड़ जी चाहते हैं ऐसा आप लोग काम कीजिए और हम लोग को दोनों पार्टी मिलके ये सीट जीतना है। यही बात बोलते हुए पुनर्बार आप लोग को निर्वाचनी अभिनंदन देता हूं। आगे फिर पॉलिटिकल बात करने के लिए मेवाड़ जी सभा करेगा, तब हम लोग आएगा, हमारा लिए बाकी लीडर्स भी आएगा, तब हम पॉलिटिकल बातें करेगा। आज हमारा ये बैठक सांगठनिक है, दोनों पार्टी का ऐसे दिल से तो आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा भी कुछ जिम्मेदारी बनता है दोनों पार्टी का इकट्ठा बैठने का। तो ये जिम्मेदारी लेके हम यहाँ आया था। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, त्रिपुरा का जय हो, हम लोग सब खुश रहे, यही बात बोलते मेरा